Assalamu alaikum students. Today's topic is classification and its aims and principles. Before discussing the classification and its aims and principles, we will discuss certain points. First of all, total organisms. There is a large collection of organisms which are found on earth which are very dissimilar from each other. Means at least 10 million kinds of organisms having very dissimilar forms are found on earth. Means earth के ऊपर जो organisms पाए जाते हैं वो तकरीबन 10 million different kinds के organisms हैं and they are very different from each other. Next point is non-organisms. Non-organisms means वो organisms जिनको scientists study कर चुके हैं. And out of these 10 million kinds of organisms, 1.5 million types of animals and 0.5 million types of plants have been studied. Means in 10 million kinds of organisms में से 2 million different type of organisms have been studied by the biologist, and this is very small percentage of organisms which have been studied. Next point is diversity. Diversity means variety. Means variety of organisms are present on earth. Like from small and simple bacteria to large and complex organisms like human beings. Small and simple bacteria means bacteria are unicellular organisms. And unicellular organisms से लेके complex organisms means multicellular organisms तक different variety के organisms पाए जाते हैं. So this diversity or this variety is because of their different sizes and their different type of functions and different type of structures of their bodies. And this variety is also due to their habitats, because there is a variety of habitats which is present, and habitat is the place where organisms live. Means habitat, variety of organisms के habitats में भी variety पाई जाती है. Means some live in sea, some on land, some walk, others fly, and still others are stationary. Means some live in sea means कुछ पानी में रहने वाले जानदार होते हैं. Some on land means कुछ खुश्की पर रहने वाले जानदार होते हैं. Some walk, कुछ ऐसे जानदार हैं जो पाँव पे चलते हैं. Others fly, कुछ उड़ने वाले होते हैं like birds, and still others are stationary. Stationary means motionless. Means those organisms which cannot move. बहुत से organisms अर्थ के ऊपर ऐसे हैं जो मूव नहीं कर सकते, which are stationary. For example, corals, fungus, plants. Next point is way of life. Means different organisms में different तरीके होते हैं life को गुजारने के लिए, और इसको हम different points में discuss करेंगे. First of all, getting food. Organisms का फूड हासिल करना जो है ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इसके डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइडिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस. मींस जब एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती ऑर्गेनिजम्स के लिए तो वो अपने आप को कैसे बचाते हैं ऐसी कंडीशन से. लाइक इसकी हम एग्जांपल इस तरह से दे सकते हैं, जैसे एंड्स हैं, चींटियाँ हैं. तो एंड्स जब उनके अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं तो वो अपने होल्स में चली जाती हैं. मींस जब विंटर सीजन होता है जो कि उनके लिए अनफेवरेबल होता है तो तब वो अपने होल्स में चली जाती हैं, और जो ही समर सीजन आता है विच इज़ फेवरेबल फॉर देम दे कम आउट ऑफ देयर होल्स. नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव. अब रहने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स की अपनी जगह की तलाश है वो भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट उसके मेथड्स होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड्स. मींस अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना जो है वो भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट तरीके हैं. अब अगर हम रिप्रोडक्शन को देखें तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सम ऑर्गेनिजम्स reproduce their next generation by
sexual methods, and others reproduce their next generation by asexual reproduction. अब asexual reproduction को देखें तो उसके भी next बहुत से methods हैं जिससे different organism जो हैं वो different methods को adopt करके अपने next generation produce करते हैं. So these are the points which are very important to discuss before knowing about the classification. So now we will define classification. Biological classification. Biological classification is a method by which biologists divide organisms into groups and subgroups. Means biological classification एक ऐसा method है जिसमें biologist क्या करते हैं, organisms की similarities के लिहाज से और dissimilarities के लिहाज से उनको और उनके characteristics के लिहाज से उनको different groups और subgroups में divide करते हैं. And this is called classification. लेकिन यहाँ पे हम word use करें हैं biological classification. अब इसको हम biological classification क्यों कह रहे हैं? Because there is the division of or living organisms into groups and subgroups. Means यहाँ पे जो organisms use किए जा रहे हैं जिनको classify करना है वो living organisms हैं. That's why this is called biological classification. Now there are two terms which we will discuss one by one. First one is taxonomy and second one is systematics. First of all, we will see what is the definition of taxonomy. The branch of biology which deals with the naming and classification is called taxonomy. Means ये biology की ऐसी branch है जिसमें organisms को different groups में और subgroups में classify किया जाता है. Means different groups में और subgroups में उनको divide किया जाता है और according to their groups and subgroups उनकी naming भी की जाती है. Next definition is the branch of biology which deals with the classification and also traces the evolutionary history of organisms is called systematics. अब ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें ना सिर्फ ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है बल्कि उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी साथ साथ ट्रेस किया जाता है. मीन्स ये देखा जाता है कि उनके एंसेस्टर्स कौन हैं और मीन्स उनके अबाउजदाद कौन है. मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी एंसेस्ट्री सेम है उनको एक ग्रुप में रखा जाता है और जिनकी एंसेस्ट्री डिफरेंट है उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाता है. So on the basis of these two type of terms and these two type of classifications, we can find out that what are the aims of classification. Means उसके classification के main aims क्या है ये हम देखेंगे. And there are two main aims of classification. Number one, to determine similarities and differences among organisms so that they can be studied easily. जब हमने क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया था तो उसमें हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. सो ये जो उनकी सिमिलैरिटीज के लिहाज से और उनकी डिफरेंसेस के लिहाज से जब डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जाते हैं तो इस तरह उनको ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना ईजी हो जाता है. नेक्स्ट एम ऑफ क्लासिफिकेशन इज to find the evolutionary relationships among organisms. और दूसरा मकसद क्लासिफिकेशन का ये है कि इससे हमें ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में पता चलता है कि उनके एंसेस्टर्स सेम हैं या सेम नहीं हैं या एंसेस्टर्स कौन से हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स के कौन से एंसेस्टर्स हैं या आपस में एंसेस्ट्री के लिहाज से उनका आपस में रिलेशनशिप्स क्या है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिहाज से रिलेशनशिप्स क्या हैं. ये इसके मेन एम्स हैं क्लासिफिकेशन के, क्योंकि हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी क्लासिफिकेशन से जान सकते हैं और ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो उनके करैक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं वो भी हमें क्लासिफिकेशन से ही पता चलते हैं. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑर्गेनिजम्स. मीन्स क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है? ये रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान.
एंड सच रिलेशनशिप इज गॉट थ्रू सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये रिलेशनशिप का हमें कैसे पता चलता है कि उनमें रिलेशनशिप कैसा है, कि उनके कैरेक्टरिस्टिक की सिमिलैरिटीज से हमें पता चलता है कि वो आपस में कितना रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। सो इसी बेस पे उनको क्लासीफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल, these similarities are seen in structure, stages of development, evolutionary history and modern genetics। मीन्स इस किस्म के करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए ये देखा जाता है कि वो कितना आपस में रिलेटेड हैं सिमिलैरिटीज़ के लिहाज से। सो इसकी बेस पे उनको क्लासीफाई किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस दीज करेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चर। Similarities can be seen in external and internal structures of organisms। जब हम डिफरेंट ग्रुप्स को देखते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, तो एक ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के लिहाज से सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर डिफरेंट इन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। मीन्स एक ही स्पीशीज के जब हम ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो उन सब में डेवलपमेंटल स्टेजेस सेम होती हैं, लेकिन जब हम डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो उनमें डेवलपमेंटल स्टेजेस डिफरेंट होती हैं। सो डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिहाज से जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक ग्रुप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट इज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू वन अनदर एट सम पॉइंट इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। इसी तरह हम क्लासिफिकेशन में जब हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिहाज से वो आपस में रिलेटेड होते हैं। मीन्स उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज आपस में मिल रही होती हैं, रिलेट कर रही होती हैं, उनमें हमें सिमिलैरिटीज नज़र आ रही होती हैं। नेक्स्ट इज द मॉडर्न जेनेटिक्स। The similarities and differences in the DNA of two studied organisms can be used for getting idea about similarities and differences in their structures and functions। Dear students, हर organism का DNA different होता है and we know that DNA determines the structures and functions of a body। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो जो फंक्शंस होते हैं वो उनके डीएनए के अकॉर्डिंग होते हैं। लिहाजा डीएनए के लिहाज से जो करेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं उनमें जो सिमिलैरिटीज होती हैं और डिफरेंसेस होते हैं उनके लिहाज से भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है।